اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی برکات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، الف لام میم 3 حروف ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے سورہ بقرہ کی۔ دوستو، جس شخص نے یہ کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس نے ان الفاظ کے بارے میں بولا تھا کہ کوئی مائی کا لال ان کا ترجمہ کر کے بتائے۔ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو اس کا قانون بتا دینا چاہیے تھا کہ ان تلفظوں کے ترجمے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے قرآن کے اندر۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کو قرآن پاک سے کوئی اس کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ بول دیے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کوئی قانون بیان فرما دے تو پھر ہم اس کے بیچ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر دیں۔ دیکھیں، یہ حروف الف لام میم، ان کو اردو میں حروف مقطعات کہتے ہیں، قطعی حروف جن کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کے بیچ میں کسی جگہ کے بیچ میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں فرمایا گیا۔ قرآن پاک کے بیچ میں تقریباً ہر جگہ کے بیچ میں لفظوں کے ترجمے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے ترجمے کروائے ہیں۔ جیسا کہ آپ آیت میں جہاں بھی آپ حکمی آیت پڑھیں گے یا آپ آیت پڑھتے ہیں کل سے مراد یہ کہ اے نبی آپ اس کی تشریح یوں کر دیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی لفظ کل آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کی تشریح کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دیتے ہیں۔ جیسے کل هو اللہ احد، اے نبی ان کو بتا دو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ لفظ کی تشریح آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشریح کر کے بتا دی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر الف لام میم ان کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے بارے میں پوری طرح سے تشریح، پوری طرح سے ہمیں سکھا دیا کہ تو آپ لوگوں نے ان کے متعلق کیا کام کرنا ہے اور ان کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہو الذی، ہوا واحد مذکر غائب ہے، الذی اس میں موصول ہے، تو دونوں کو ملا کر بڑا ہی زبردست ترجمہ بن گیا۔ وہ ذات جس نے انزلہ نازل کیا ہے الکتابہ کتاب کو، علیہ کا اس میں ضمیر متصل اور حاضر ہے، یعنی تیری طرف۔ وہ ذات جس نے تیری طرف کتاب کو نازل کیا ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو کیسا بڑے ہی مزیدار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بڑے آسان طریقے سے بڑی تفصیل میں بیان کر دیا کہ وہ ذات جس نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، منہ آیات محکمات، اس نے اس کی آیتیں کچھ تو محکم ہیں، ایسی آیتیں جن کے بیچ میں حکم ہو، منع کیا گیا ہو، یا کسی چیز کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی یا کسی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہو، اس کو محکم آیت کہتے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ کا سے مراد اس میں حاضر ہے، اس میں حاضر مفعولی حالت میں ہے، کا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی وہ ذات جس نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کی آیات ہیں، کچھ آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ حکم ہے انسانوں کے لیے۔
خواہ وہ حکمیہ شکل میں ہے یا خبریہ شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں منع کیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم ہے، ہم نے ان کو اللہ کے حکم دینا ہے، کیونکہ اللہ کی کسی بھی بات کو وہ پیار سے کہیں، غصے سے کہیں یا کسی بھی طریقے سے کہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہر بات کے اوپر، ہر حکم کے اوپر اپنا سر خم کر لینا ہے اور اپنے سر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو سجود ہو جانا ہے کہ جو بھی ہمیں حکم ملا ہم نے ادب سے سننا ہے۔ منو آیات محکمات ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل جڑ وہ ہے، جڑ سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ آیتوں کو سیکھے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کا مسلمان ہی نہیں، جو کائنات میں شخص، جو دنیا میں شخص پیدا ہوا ہے، اس کا کام ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو سیکھے، یہ اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں سیکھتا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا، جیسے ہی موت کا فرشتہ سامنے آئے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن اس کے پاس آیا تھا یا نہیں آیا تھا، پھر اس کو اس وقت اس نے کہنا ہے، لیکن اس وقت نہیں مانی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہ ذات جس نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے، اس نے اس میں کچھ آیتیں ایسی بھیجی ہیں جو کہ محکم ہیں، وہ ہن ام الکتاب، ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی وہ اس کتاب کی اصل جڑ ہے۔ تو اس کتاب کو، ان آیتوں کو سیکھنا جو ہے وہ ہر بندے پر فرض ہے، ہر انسان جو کائنات میں پیدا ہوا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری، اوخر کہتے ہیں عربی زبان میں دوسری کو، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات آیت سے وہ مراد ہے جن کا ترجمہ قرآن پاک میں بالکل موجود نہیں اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے۔ محکم آیتوں کا زیادہ تر ترجمہ جو ہے وہ ہر لفظ کا اور ہر حکم کا ترجمہ تقریباً قرآن میں موجود ہوتا ہے، اور قرآن ہی کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کل آتا ہے یا حکم ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تفصیل ہم تک پہنچا دیں گے، نبی ان کی اس طرح بتا دیں کہ یہ ایسے کریں۔ ابھی اس کے آگے آئے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، کہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا، وہ قرآن ہی میں بیان ہوگا ان چیزوں کا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی جن کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا۔ اب متشابہات آیت کے متعلق کیا ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ کوئی اس بندے نے بڑے زور سے کہا تھا کوئی مائی کا لال جو ہے وہ علیہ السلام میم کا ترجمہ کر کے بتائے، یہ بہت غلط بات اس نے کی ہے۔ اس نے اس کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ترجمہ کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی مطلب نہیں ہے، بے معنی آیتیں نہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیتیں، یہ لفظ بے معنی نہیں ہے، ان کے معنی ہیں، معنی ہیں، لیکن کس کو پتہ ہے وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی تفصیل بتا دی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل اسلام سے پھر چکے ہیں، زیغ کہتے ہیں دل میں نفرت پیدا ہو جانا اور کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہیلے جوئیاں کرنا، دل میں سوچنا، ایسی تدبیریں بنانا کہ جس سے دوسری چیز کو نقصان پہنچے۔ تو جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، وہ اسلام کو یا اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا نقصان کوئی کچھ نہیں پہنچا سکتا، اسلام ہی ہمیشہ کے لیے مذہب ہے، اللہ کی طرف سے یہی ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی اجازت ہے کہ نیکی گناہ کر سکتے ہیں، باقی اسلام کو کس نے نقصان پہنچانا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے، حکومت اعلیٰ کی طرف سے، رب عرش کی طرف سے وہ قانون ہے، وہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم نے ختم ہو کر جنت میں جانا، نعوذ باللہ، اللہ میں بچائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر فَأَمَّا کا معنی ہے جہاں تک، پھر جہاں تک الَّذِينَ، ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے دلوں میں، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے، زیغ ہے، اسلام سے پھر گئے ہیں جن کے دل اسلام سے پھر گئے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ایسی آیتوں کے بارے میں مختلف قسم کے سوال گڑھ کر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنے کو، ایسی آیتوں کے ذریعے وہ الفتنہ تو فتنہ تلاش کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح فتنہ تلاش کر کے وہ لوگوں کے بیچ میں پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، ہمیں کو فتنہ میں نہ ڈال دے، قرآن تو فتنہ مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے ہوتے ہوئے فتنہ میں آ جاتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ یاد رکھو کہ جب آدم علیہ السلام نے، ہمارے باپ نے جب اس ممنوع پھل کھایا تھا جنت کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھا تھا کہ آدم آپ کو کس نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ نے کیوں کھایا،
ये नहीं अल्लाह ने पूछा, अल्लाह ताला ने पूछा था कि ए आदम तुझे ये दाना शैतान ने खिलाया, किसने खिलाया? ये नहीं पूछा था। अल्लाह ने फरमाया ए आदम ये दाना ये चीज आपने क्यों खाई, ये चीज आपने क्यों खाई है, जबकि मैंने तो आपको ममनू कर दी थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इधर साफ फरमा दिया कि जो लोग ऐसी आयतों का तर्जमा करते हैं जिसका तर्जमा कुरान में मौजूद नहीं है और अपने पास इनको गढ़ कर आगे लाते हैं, तो इन लोगों के दिल जो है वो इस्लाम से फिरे हुए हैं। ये इस्लाम में फितना मचाने के लिए उनके इनके लिए मुख्तलिफ हरबे ढूंढते हैं। हरबे ढूंढने में क्या मुराद है कि अल फितना तो वाक्य का तावील ही ऐसे ही तावील ने इसके मतलब है कि इसकी तशरीह शुरू कर देंगे। मतलब मैंने एक बंदे को सुना, कहता है अलफ से अल्लाह, लाम से जबरील, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे झूठ मूठ अपनी तरफ से। फिर आगे बहाना क्या लगाता है, बहाना करता है। कौन कहता है कि लफ्जों का तर्जुमा नहीं है? अभी तर्जुमा है, लेकिन कुरान में इसका क्या हुक्म है? आपको ये हुक्म नहीं है कि आप इसका तर्जुमा करें, इसका तर्जुमा है। अगर दूसरे ने कह दिया कि कौन माई का लाल जो है वो इसका तर्जुमा करेगा, तो उसने भी बहुत गलत बात किया। क्यों गलत बात किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे वाज़ेह फरमा दे कल फितना तवील ही वो मा यालमु तवील, इनका तर्जुमा कोई नहीं जानता इल्लल्लाह, मगर मा यालमु तवील इल्लल्लाह, मगर अल्लाह इनका तर्जुमा जानता है। इसके तर्जुमे का पता अल्लाह को आएगा, यानी अलिफ लाम मीम। इससे ये साबित हो गया कि देखें मातशाबो मिन्हु उब्तिगाल फितनते वब्तिगा तवील ही व मा यालमु तवील इल्लल्लाह, कि इन लफ्जों में तर्जमे से भरपूर है, लेकिन तर्जमा जो है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। बेतर्जम इनको कहना कि इनका मानी कोई नहीं है, ये बहुत गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वमा यालमु, कोई नहीं जानता, तवील इनका तर्जमा इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के यहाँ इनका तर्जमा है। इसलिए बेमानी कहना कि तर्जमा नहीं कर सकते, इनका तर्जमा हमने ये कर दिया कि हमें इनके ऊपर हमें इससे कानून मिल गया, अल्लाह ताला की तरफ से कानून भी मिल गया कि तुमने इसका तर्जमा नहीं करना और इसको बेमानी भी नहीं समझना है। क्या करना है? एक तो इसका तर्जमा नहीं करना और दूसरा ये नहीं समझना कि ये बेमानी लफ्ज है। वह मा यालमु तवीलो इल्लल्लाह, मगर अल्लाह इनके तर्जमे को जानता है। अभी अल्लाह ताला ने वंड कर दिया, आगे अल्लाह ताला ने अलग कर दिया। पीछे आ गया था फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना, कि वो लोग जिनके दिल इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम से नफरत है, वो सिर्फ अपने जाती मकासद के लिए इस्लाम के साथ को ताल्लुक है उनका, बाकी उनको इस्लाम से कोई गर्ज नहीं है। तो वो लोग इन लफ्जों के ऐसे भी लजुइयां करके तो बीच में फितना ढूंढते हैं। अब अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में बताया कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, जो सही इल्म वाले लोग हैं, उनका क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं वर्रासिखून फिल इल्म, रासिख कहते हैं कटर इल्म वाला, जिसमें जो पंजाबी जो बड़ा कटर बंदा, बड़ा कटर इल्म वाला, बड़ा पक्के इल्म वाला। वर्रासिखून फिल इल्म, मगर वो लोग जो इल्म में बहुत पक्के हैं, मजबूत हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म के बीच में रचे हुए, जिनके जिस्म के अंदर सही इल्म कुरान रचा हुआ है, उनको कहते हैं रासिखून। वर्रासिखून, वो क्या कहते हैं इन आयतों के बारे में, इन अलिफ लाम मीम यानी मुतशाबिहात आयत के बारे में वो क्या कहते हैं? वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं आमन्ना बिही, हमने जो ऊपर अल्लाह ने हमें कानून बता दिया, हम इन पर ईमान ले आए हैं और हम इसी चीज के कायल हो गए। हम अपनी तरफ से कोई इसमें इजाफा नहीं करेंगे, ना इनका तर्जमा करेंगे और ना इनको बेतर्जमा कहेंगे। इनका तर्जमा है ही कोई नहीं है, और ना ही हम ये करेंगे कि इनके बीच में तवीलें अपनी तरफ से ढूंढना शुरू कर ले कि ये तर्जमा है। नहीं, आमन्ना बिही, वो इन पर ईमान लाते हैं जो ऊपर हमारे हुक्म गुजर चुके हैं कि मुहकमातुन मुहकम है और मुतशाबिहात है, उस पर हम ईमान लाते हैं। हमारे रब ने हमें हुक्म दिया, हमारे अल्लाह, हमारा प्यारा अल्लाह, उन्होंने हमें हुक्म दिया कि ये तो हमें अल्लाह, हमने बस ईमान लाया, जो आपने फरमा दिया वो इस पर हम ईमान ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मेरे, हम इसी कानून पर ईमान ले हैं, आप अल्लाह के गुलाम आप कह रहे हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, जो पक्के है इल्म है, अल्लाह ने आपके हुक्मों पर ईमान ले हैं। आमन्ना बिही, हम इन पर ईमान ले आए। कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से है, ये हमारे रब की आयतें हैं। तो हमारा रब इनके तर्जुमे को जानता है, जैसे आयतें हमारे रब ने हमें हुक्म दिया, हम उसी तरह इन आयतों के बारे में, उसी तरह इन आयतों के ऊपर ईमान लाएंगे। तो आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये सब की सब हमारे रब की तरफ से है, ईमान लाए।
बीच में ना हुक्म ना ममनू, बस ईमान लाकर पूरा सवाब कमाया बगैर अमल के, सिर्फ ईमान लाकर। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना फायदा हुआ इसमें। अलिफ लाम मीम, कि इन आयतों के बीच में कोई हुक्म अमल करने का हुक्म नहीं, कोई नहीं, बस ईमान ला गई। अल्लाह की आयतें हैं और ये अल्लाह को इनके मानी का पता है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमें ईमान लाने का बहुत बड़ा सवाब मिला। ये अल्लाह की तरफ से है। आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये सारे हमारे रब की तरफ से हैं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, ये बात या उलुल अलबाब अक्ल वाले, वो लोग जिनकी अक्ल है, जिनके पास अक्ल है, जिनके दिल और जहन, तकरीबन आप देखें तो ये दिमाग और दिल जो है तकरीबन दोनों मिलकर एक दिल बनते हैं, दोनों चीजें एक बनती हैं। क्योंकि आप देखें कुरान में दिमाग का जिक्र नहीं है, तो इसलिए दिमाग और जो दिल है दोनों इससे एक दिल के काम करते हैं। तो फरमा दिया उलुल वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और अब इस नसीहत को कौन समझते हैं? सिर्फ अक्ल वाले लोग समझते हैं। बेअक्ल बेवकूफ है वो इन आयतों को ना वो पढ़ते हैं, ना उनको इन हुक्मों का पता है, वो अपनी तरफ से इसके लिए तावीलें ढूंढते हैं। अब मुतशाबिहात आयत के बारे में मैं आपको एक मोटा सा कानून बता देता हूँ कि वो आयतें जिनका तर्जमा कुरान में मौजूद नहीं है, अभी इसमें आप देख लें, मैं अच्छा मुख्तर सा कर देता हूँ कि आयतों की दो किस्म की, मुहकमात और मुतशाबिहात। अब इसी के बीच में अगर हम तफसील में आगे ज्यादा जाएंगे तो मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ आयतें ऐसी हैं जो इबादत के मुतल्लिक हुक्म है, उनके बीच में इबादत, मसलन नमाज के बारे में अल्लाह, आप देखते हैं कुरान पाक के बीच में क़याम का हुक्म है, सजदे का हुक्म है, रुकू का हुक्म है, ये नमाज के बारे में ये हुक्म है, औकात के हुक्म है, लेकिन उनकी तफसील नहीं है कि कितनी रिकतें कितने बजे पढ़नी है, कितनी रिकतें, कितने सजदे और कितने रुकू करने हैं। इसकी तफसील हमें हदीस से मिलती है, इसकी तफसील हमें हदीस से मिलती है। तो जब कुरान के बीच में हुक्म हो लेकिन उसकी तफसील ना हो तो उसके लिए हमने हदीस में जाना है। और जो चीज हुक्म भी हो कुरान के बीच में और उसकी तफसील भी हो, तो फिर उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तफसीलें होंगी वो कुरान ही के बीच में होंगी। उसके बारे में ये आप शक में ना पड़े कि कुरान में कुछ तफसील तो आगे कोई आपको हदीस पेश करते जनाब ये हदीस है, वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होगी। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आप मुनकर हदीस है, तो उनको कहे कि भाई हमारी सर आंखों के ऊपर हदीस, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो सर आंखों के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये जो हदीस बयान की गई है ये कुरान के खिलाफ है, कुरान का इसका कानून, इसकी तफसील मौजूद है, तो लिहाजा अगर हदीस है तो हम इसको मुतशाबिह समझ कर नाम के बारे, इसके बारे में कोई तर्जमा करना ही नहीं चाहते, जो कि कुरान के खिलाफ हदीस हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत से लोग आपको चक्कर देने की कोशिश करेंगे, क्या आप मुनकर हदीस हैं, इस तरह की बातें करके परेशान करने की कोशिश करें। तो नमाज की वजह से बहुत से लोग अगर बताओ जी क्या मतलब कि फिर नमाज का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है, इसको बहाना रख के आपको कुरान से रोकना शुरू कर दें, कुरान का तर्जुमा ना करो। कुरान पाक के बीच में जिन आयतों का अल्लाह ने खुद तर्जुमा कर दिया उनको हदूदुल्लाह और किसास के कानून में आते हैं, और जिनका तर्जुमा नहीं किया, हुक्म है लेकिन उसकी तफसील नहीं है, तो वो जो हुक्म है वो हमें हदीस में मिलेंगे, लेकिन ये हदूद और किसास के कानून में नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इबादत के मुतल्लिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलन नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनके मतलब हुक्म है, लेकिन इन इबादत के मतलब जो असल तफसील है, जनाजा, ये तफसील जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, लेकिन हदूद और किसास के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस नहीं भेजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ही में उसकी तफसील मौजूद है, और आपने उसके मुताबिक लोगों को पढ़कर सुना दिया, अपनी तरफ से कोई तफसील नहीं दी है। हाँ, अभी देखें कि अभी हम देखते हैं कि ये लोग जो है, ये साहब अक्ल लोग जो हैं, ये कौन है? वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, कि जो लोग ऊपर वाली नसीहत को समझ कर इस पे अमल करते हैं और इसके बीच में अपनी तरफ से कोई तवीलें, कोई ऐसे सोचे नहीं बांधते, बल्कि इस पर अमल करते हैं। तो ये लोग अपने रब से इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, अपने रब से चाहते हैं कि हमारा रब कभी हमसे नाराज ना हो और हमारा रब कभी हमें दूर ना करे, हमारे ऊपर हमेशा हमारे रब का साया रहे, और अल्लाह हमें कभी दूर ना करे। तो ये इनकी खिलाफ वर्जी करना दूर की बात है, बल्कि वो दिल से डरते हैं कि कहीं खिलाफ वर्जी ना हो जाए। इन पर पूरी तरह अमल पैरा होते हुए फिर भी अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खिलाफ वर्जी, हमारा दिल में कभी इसकी खिलाफ वर्जी है, ऐसा उससे ऐसे डर, ऐसे खौफ की वजह से अपने रब से ख्याल करते हैं, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना, हमारे
परवरदिगार हम इन पर ईमान ले आए और हम दिल से इन पे अमल करेंगे। तो ऐ हमारे रब अपनी रहमत से हमारे दिल को इन चीज़ों से टेढ़ा होने से बचा दे कि कहीं हमें शैतान या हमारे दिल हमारे नफ्स जो है ये कहीं नफ्स से हमारा जो है ये कहीं हमें इस चीज़ से मोड़ ना दे और आपके ऊपर से दूर करके हमें आपसे दूर ना कर दे। तो वो इस खौफ की वजह से हम कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए, इस गलती से बचने के लिए वो अपने रब को हुक्म को इतना कीमती समझते हैं कि वो कहते हैं कि रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमें बचा ले कि हमारे से कभी गलती ना हो जाए इन आयतों के हुक्म के बारे में, हमारे दिल टेढ़े ना हो जाए कहीं कि हम इनका आयत का ऐसे मकसद तर्जुमा कर लें, किसी की बात में अमल कर लें या किसी की बात को सुनकर उस पर यकीन लें। तर्जुमा करने वाला और तर्जुमे की यकीन लाने वाला दोनों बराबर है। ये नहीं है कि उधर जी उसने तर्जुमा कर दिया मौलवी साहब ने तो वो जिम्मेदार है, तो जो ईमान ले जो उसने मान लिया वो इसका जिम्मेदार नहीं है। दोनों खाना खाते हैं, दोनों जमीन के ऊपर रहते हैं और अल्लाह की सल्तनत में रह रहे हैं। दोनों का जिम्मा है कि अगर एक बंदा नहीं जानता तो उसको को हुक्म पढ़कर, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि जी मुतशाबिहात है, तो आपका हुक्म आपका फर्ज बनता है कि मेरे से पूछे कहाँ से आपने भी बताया ये, मुझे आप नबियों के तर्जुमे ला के जो मैंने कह दिया बस वो आखिरी हरफ होगा, ऐसे बात नहीं करना। पूछें कि अलामा साहब आप कहाँ से ये हमें हुक्म सुना रहे हैं, कहीं अपने से तो नहीं सुना रहे हो। ठीक है जी, इसलिए इसके बारे में आपने जरूर के कानून है, कुरान है, कोई मजाक नहीं है। तो कुरान में मुकम्मल कानून बयान है। तो ये लोग अक्ल वाले लोग हैं, उलुल अलबाब हैं, ये साहबी अक्ल हैं, ये ऐसे अपने रब से मोहब्बत करते हैं। कई हमारा रब ना हमसे नाराज हो है तो अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए कहते हैं रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह आपने हमें बता दिया, हदायत दे दी है कि इन आयतों का तर्जुमा नहीं करना है, तो या अल्लाह हम नहीं करेंगे तो आप हम पर रहम फरमा दो। पहले हमारा दिल टेढ़े हुए वो भी उनकी भी पाकीज़गी कर दे और आइंदा हमें टेढ़ा दिल होने से बचाएं। वहाबलना मिल्लदुनका रहमा, और अपनी तरफ से हम पर रहम फरमा। अगर हमारे से पहले कोई गलती हो चुकी है तो इस आयत के सुनने के बाद आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे और आप भी हमें कायम रखेंगे, कहीं हम ना गलती भी ना करें। हम हमारे लिए आप ऐसे रास्ते बना दें, ऐसे चीजें पैदा कर दें कि हम पूरी तरह समझे, कहीं इनकी तर्जमा करने की गलती में ना आ जाए। मिल्लदुनका रहमा इन्ना का अंतल वहाब, बेशक सब अताएं आप ही की तरफ से हैं। ए अल्लाह सब अताएं आप ही की तरफ से हैं, सब अता करदा चीजें जो आप ही अता करते हैं, कोई और अता करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बता दे जबकि आपने हमें हिदायत दे दी है, ऊपर हमें बता दिया ना आयतों के तर्जुमे के बारे में। वहाब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपने पास से रहमत भी दे, दो रहमतें दे, एक जो हमने मान लिया उसके लिए हम पर रहम फरमा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी बरकतें नाज़िल फरमा, और दूसरी हम पर ये रहम करके हम कहीं गलती से आपकी नाफरमानी ना कर दें। नायतों के तर्जुमे के बारे में वह रहमत इन्ना का अंतल वहाब, या अल्लाह आप सब कुछ अता कर सकते हैं और आप ही अता करने वाले हैं, कोई आपके सिवा अता से मुराद यह कि अगर आपको कोई चीज देता है तो वो अल्लाह की दी चीज, लेकिन अल्लाह सबको अता करता है, अल्लाह किसी से लेकर नहीं, खुद बनाकर अल्लाह देते हैं। तो इसलिए हमें इनके बारे में मोहताज रहना चाहिए कि ऐसी आयतों के बारे में कोई तर्जमे में नहीं पढ़ना। कोई हरूफ ऐसे जितने भी कुरान पाक में ऐसे हरफ आते हैं वो मुतशाबिहात होते हैं, इसके अलावा और भी आयतें मुतशाबिहात हैं जिनका कुरान में तर्जुमा मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको सूरह कहफ की एक आयत पढ़कर सुनाता हूँ। तो हम लोग ऐसी कहानियां गढ़ना शुरू कर लेते हैं कि बड़े बड़े किस्से, तो लंबे लंबे कहानियां, और भी ये सब यहूदियों और ईसाइयों से ली गई हैं, और उसके बीच में हमारे पास कोई सदाकत नहीं है। अंधाधुंध हम और दूसरों की बात मानकर अपने आप को भी अल्लाह के अजाब के और अल्लाह की अजाब के तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम सूरत कहफ के बीच में असाब कहफ के बारे में कहते हैं। ये असाब कहफ हमारे बुजुर्ग, हम इनको सलाम पेश करते हैं, बहुत नेक लोग थे और ये नौजवान थे, इनको अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी। तो ये इन्होंने क्या किया था कि लोगों को जब देखा कि वो लोग मुशरिक थे तो इन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए और शिरक से बचने के लिए इन्होंने कहा कि चलो ऐसी वादी में चले, चलो ऐसी जगह पर चलें जहाँ शिरक ना हो और हम अपने रब के होकर रहें, तो हमारा रब हमारे लिए ऐसी जगह पैदा फरमा देगा। तो अल्लाह ताला ने इन पर ऐसी नींद तारी कर दी कि ये सोए रहे और अल्लाह ने फरमाया सब कुछ तुम्हारे लिए, अब कि तुम ऐसे शिरक से बचने के लिए इतने दूर आए हो। तो हमने लोगों ने इसके मन के बारे में बहुत सी और कहानियां काट ली, लोगों को असल हकीकत नहीं बताई कि ये लोग क्यों भागे थे। ये भागे थे शिरक से बचने के लिए और अपने रब की मोहब्बत के बीच में रहने के लिए, अपने रब के करीब रहने के लिए, अपने रब के कुर्ब के लिए ये वहां से भागे थे। तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया
कि इसके बीच में आपको एक हदीस भी मिलेगी कि अल्लाह ताला ने खुद बड़ा क्या है, नबी इनको बता दो कि ऐसे तर्जमन का इस तरह करना। मिसाल के तौर पर सयकूलूना सलासतु राबिहुम कल्बुहुम, ए नबी जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं, जैगुन है ना, जैगुन के बारे में आ रहा है कि जिनके जो लोग जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं, उनसे अगर आप पूछें कि वो कितने थे, साया कूलूना, सिंदर सा जब अरबी जुबान में आ जाता है तो ये मुस्तकबिल करीब को जाहिर करता है, और अगर सौफा आ जाएगा तो ये मुस्तकबिल बाईद को जाहिर करता है। सिंदर सा या कूलूना जो है, ये का लफ्ज जो है ये मजारे को जाहिर कर रहा है, लेकिन सीन लगने से ये मुख्तस हो गया है फ्यूचर के साथ, यानी मुस्तकबिल करीब के साथ। सीन ने दो काम किया कि इसको मुस्तकबिल में लेगा, और दूसरा ये किया कि इसको मुस्तकबिल करीब के साथ कर दिया। सयकूलूना सलासा तो राबिहुम कल्बुहुम, अगर आप इनसे पूछेंगे वो साहब कितने, तो कुछ कहेंगे तीन वो थे और चौथा उनका कुत्ता। राबिहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। तीन वो थे और चौथा उनका कुत्ता था। फिर किसी दूसरे से पूछ लो, इसी मतलब ये जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं, किसी और से पूछ लो तो वो आपको बोलेगा नहीं नहीं उस मौलवी ने गलत बताया। मैं आपको बताता हूँ, असल में वयकूलूना खमसतु सादिसुम कल्बुहुम, सादिसुम कल्बुहुम, और वो दूसरे से किसी पूछे टेढ़े दिल वालों से तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो जनाब 5 और छठा उनका कुत्ता था, वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं वयकूलूना खमसतुम सादिसुम कल्बुहुम, कि वो कहेंगे खमसा 5, वो 5 थे, सादिसुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था। और फिर आओ तो किसी और से मिल लो, किसी और ग्रुप से सीधे जिनके दिल टेढ़े हैं, इस्लाम से फिरे हुए हैं, जो ऐसे ही बात पैसे कमाने के लिए इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, उनसे आप किसी और से पूछे तो अल्लाह ताला जो फरमाता है, अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अल्फाज में रजमन बिल गईब, यानी अंधेरे के बीच में, अंधेरे के बीच में आंखें बंद कर तीर का निशाना लगा रहे हैं, बिन देखे तीर चला रहे हैं, अटकल के तीर, अपने ख्याली तीर चला रहे हैं। इनको कोई पता नहीं, कोई बोलेगा 3 वो थे, चौथा उनका कुत्ता, कोई बोलेगा 5 वो थे, छठा उनका कुत्ता। रजम कहते हैं फेंक कर चीज फेंकना, दूर तीर चलाना। बिल बिन देखे तीर चला रहे हैं, कोई तीर नहीं दे रहा, आंखें बंद की तीर चला रहे हैं, यानी ख्यालात से ये तीर फेंकने वाली बात है। वयकूलून सब आतुन, फिर और किसी तीसरे ग्रुप से पूछो, वयकूलून सब आतुन व सामिलहुम कल्बुहुम, यानी जो लोग जाहिल, जिनके दिल टेढ़े हैं, जो कह चाहते हैं कि हमें शोहरत मिलेगी, ये अलामा साहब तो इल्म का समुंदर है, बहुत बड़ा इल्म है इसके पास, तो उनके तीसरे ग्रुप से अगर पूछोगे ना कि वो कितने, तो वयकूलून, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहेगा वयकूलून सब आतुन व सामिलहुम कल्बुहुम, कि 7 वो थे और 8वां उनका कुत्ता था। 7 वो थे और 8वां उनका कुत्ता था। यानी ये हर बंदा दूसरे बंदे से बड़ा इल्म हासिल, अपना को बड़ा आलम बनने के लिए, कुरान में इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है, लेकिन अपने से बताएगा कि देखो जी कुरान में तो नहीं है, लेकिन इसको पता ये बड़ा आलम है, इस आलम नहीं है, इस पर लानत पड़ी है, जैगुन है। ठीक है, तो इसलिए फरमाया सब आतुन वसामिन कल्बुम, तो तीसरे ग्रुप से अगर आप पूछे, वो कहेगा 7 वो थे और 8वां का कुत्ता था। अभी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखें कि नबी सारे हमारे हैं, हम किसी नबी में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों ने, ये ईसाइयों, यहूदी और दूसरे मजहब के लोगों का काम है कि किसी नबी को मानना, किसी को ना, हम सब नबियों को बराबर मानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी असल बात इनको समझा दें कि है क्या, आपने क्या करना साहब के बारे में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी इनको तफसील बता दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में हमें तफसील बता दी कि आपने इसके बारे में क्या करना है, आपने इसके बारे में क्या करना है कि कुल रब्बी, तो कह दीजिए कि कुल रब्बी, ए नबी इनसे कह दे कि रब्बी आलम हो, कि मेरा रब जानता है, मेरा रब ही जानता है, आलम हो, सबसे ज्यादा जो असल पता है इस चीज का वो मेरे रब को है। कुल रब्बी आलम हो बेइद्दत हिम, कह दो कि मेरे रब ही को इनकी तादाद का इल्म है, और किसी को इल्म नहीं है। तो लिहाजा आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि है नबी आप इनको बता दें कि जो ईमान वाले लोग हैं, वो उनको ये बता दो कि ईमान वाला तुम इनकी तादाद के बारे में भी बहस ना करना। तो जिन चीजों का इल्म अल्लाह ताला ने, जिन चीजों की तादाद या जो चीजें तफसील कुरान में नहीं बताई,
تو ان کے بارے میں خود بخود اپنی طرف سے گال لینا بہت بڑا جرم ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل اسلام سے پھر چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.